कितना होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत साधुवाद बिहानी इंस्टीट्यूट इस सारे अरेंजमेंट के लिए और आप सबके रूबरू होने के लिए जो ये अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट ने दी है और इतने सूझवान और इतने अटेंटिव लिसनर्स ये देने के लिए एक तालियां आप सबके लिए। All the students listening the things since morning, क्योंकि या तो आप लोग लगातार यहाँ थे या हम टीम आपके साथ थे, बाकी तो लगभग बारी बारी से बदलते रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। I am from 1998 batch of Rajasthan State Administrative Service. I am a Rajasthan Cooperative Service Officer. You know RCS, it is called RCS. Basically, by mistake, it has been written somewhat else. I am Deputy Registrar at present by the designation, and I am on deputation to a project. I had been MD of 3 different cooperative banks, and I have been a district registrar also for 3 districts: Jhalawad, Hanumangarh and Sri Ganganagar, 3 districts. Friends, we are talking about, usually we are just used to of 2 sort of systems or economies, public sector and private sector. There is third type of sector also, that is called cooperative sector. Would anybody of this audience, beautiful audience, can give some idea about what is cooperative all about? Anybody open? Have you listened this part? Cooperative? Anybody from the audience? You just have to mention what is the meaning of cooperative. What do you understand by cooperative? Not definition, means your general perception, your own perception. Sir, actually they are in a habit to be called by name. I think, shall I call somebody by name to tell this? Yeah. Sarakshi, can I have it from your side? Dharmishta? Cooperative means when 2 parties or 2 persons make a combined effort Okay. to make. 2 parties. What else? Yes, good effort. Nice. They invest together. Okay. They are equally responsible for profit or loss. Yes. Okay. Good. Anybody else would like to incorporate something or add something? Okay. Not wasting much time actually. Just giving some idea about this thing. You know, cooperative, you might not be having this idea about this thing. सुबह से बात हो रही थी, लगभग 8, डॉक्टर आनंद सिंह ने बताया कि 8 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। उस 8 बिलियन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उसमें से 1 बिलियन पीपल आर related with cooperative. 1 billion means every single person out of 8 is a member of cooperative movement, cooperative institutions. Friends, cooperative is a third sector. It has been around century old or even more. It is basically, it's not
is a group of two people or two parties rather. It's a group of, it's any group of people who voluntarily, first of all, keep in mind, voluntarily means there is no foundation for being a member of a cooperative, and then assemble or invest, whatever word you are using in your own terminology, for a certain purpose, certain business purpose. They will assemble voluntarily first of all, then they will elect their body with democratic norms. That is another important. There could not be any monopolized or hegemony system or one-man system. There would be a democratic setup, and whatever profit and loss would be, that would be shared accordingly. Anyway, why I am talking about this thing? हमारी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, उसका एक रूरल अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा अंग है ये कोऑपरेटिव सेटअप। अपन सिर्फ इतना ही जानते हैं कि कोऑपरेटिव में ये हो गया, कोऑपरेटिव में वो हो गया, गबन हो गए, घोटाले हो गए। वी आर नॉट अवेयर अबाउट द रोल or the importance of this sector. You might be knowing 2012 year was declared by United Nations Organization as the International Year for Cooperative. सुबह से दो एडमिनिस्ट्रेटर आपके बीच प्रेजेंट, जो सीनियर IAS ऑफिसर थे, एक खुराना साहब ऑनरेबल नेम है, उसी कड़ी में मुझे अराउंड 16 इयर्स का इस सेक्टर में काम करने का, एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में, मुझे दोनों में काम करने का एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स, आज का जो असाइन टॉपिक है और इसी से उस सारी बात को कोरिलेट करते हुए दो चार एस्पेक्ट्स मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँ। गवर्नमेंट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका जो एक आपकी प्रेजेंटेशन बना हुआ है, दैट इज विद यू। मैम विल डिस्ट्रीब्यूट इफ whatever, if it is for any necessity for any student. So just I'd like to share some views, practical views, which we can term as some insider views. जो रूटीन में एक रिटायरमेंट के बाद बात करता है, बिकॉज इट्स academic forum, it could be some of the views or some of the facts could be shared, how administration at the rural level, at the grassroots level works, and what sort of problems used to occur in that field, and how these things are tackled up. आप लोग नरेगा जानते होंगे? Are you aware about नरेगा? Okay. नरेगा आज एक बहुत बड़ी सर्विस है जो ऑल इंडिया लेवल पर रेंडर हो रही है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है और बहुत सारे घरों के चूल्हे भी जल रहे हैं इस नरेगा से। You know, when this was implemented in whole of the country, can you tell me the year? 2005-06, right? Earlier on, it was introduced in some selected districts. From there, then onwards, it was introduced in whole of India, across all the states, and all the districts were covered in that scheme. There had been a lot of criticism also about this Narega, but as it has been a stage of comprising mostly of our girl students, हमारी मातृशक्ति, ये नरेगा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रूरल एरिया में लेके आई।
I was managing director at that time in district Sri Ganganagar. My collector was Mr. Bhavani Singh Dekha. He was my administrator also. This scheme was introduced, and first thing was in that scheme was direct transfer of the benefits. First time in a mass scheme like Narega, where such a huge or rather a greater part of the population was involved. First time that scheme was introduced in Narega. Means you have to register all the laborers in the rural areas and you have to pay them through bank account. And in those days, now it's around 10-year old story. In those days, it would, in our district, most of the rural areas were not covered by commercial banks. Huge task was taken, and this task was given to cooperative department. And we had to open around a bank account of around 4 lakhs people, mostly illiterate, not having proper IDs, which we have. Just ma'am was asking, sir, please give your ID, proper ID with photo and all that. Sir was searching which should I give. We have now so many IDs today, but 10 years back in rural areas, it was not the scene. And we were given around 15 to 20 days only. And this task, पूरे प्रशासन में हाथ पांव फूले हुए थे सबके, क्योंकि स्कीम लागू होनी थी, सबके खाते बैंक में खुलने थे और मैस लेवल पर 4 लाख खाते खोलना, और वो भी फ्रेंड्स विद डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी के भी खाते गांव में एक पटवारी बिठा दिया उसने नाम उतार दिया. नो, एज अ बैंकर यू हैव टू ओपन ऑल द अकाउंट्स, एंड क्योंकि उसके माध्यम से पेमेंट भी होगा, फिर उनका पेमेंट किया जाए. एंड दैट मिरेकल वाज डन. मतलब दिन रात काम किया और वो अकाउंट खोले गए. अकाउंट खोल के राइट टाइम जब स्कीम लॉन्च हुई, उससे पहले सारे, और उन एरियाज में भी फ्रेंड्स आप लोगों को पता नहीं कितना आइडिया है या नहीं है, हमारे यहाँ राजस्थान में 50-50 किलोमीटर दूर तक लगभग बैंक या इवन पॉपुलेटेड विलेज भी नहीं, हैमलेट्स हैं कई जगह, छोटे छोटे हैमलेट्स हैं, और उन लोगों को भी कवर करते हुए उनके सारे डॉक्यूमेंट्स लाके काम किया गया. ये बात मैं आगे क्यों कहना चाह रहा हूं, इस नरेगा ने क्या इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई. हमारे रूरल एरियाज की जो कॉमन मैन है, एक आम आदमी है जिसका घर बड़ी मुश्किल से, या तो वो लैंडलेस है, यानी कि उसके पास तो जमीन नहीं, वो दिहाड़ी मजदूरी करता है. लैंड है तो वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एसएमएफ कहा जाता है, तो वो है एसएमएफ है. एसएमएफ क्या है, जिसके पास थोड़ी जमीन होती, लेस देन 4 बीघास, जो एक इकोनॉमी के हिसाब से उसकी इकोनॉमी नहीं बैठती, वो फार्मर. एंड इस महंगाई के जमाने में एक महिला के दृष्टि से सोचिए, ऐसे घर को आपको चलाना है, आपको अपने बच्चे को भी पढ़ाना है, इलाज भी करना है, और आपके पास रेगुलर इनकम, ऊपर से कहीं ड्राउट है, कहीं सोशल, कहीं नेचुरल कैलामिटीज है, कहीं सोशल फाउंडेशंस है. ज्यादातर गरीब आदमी ड्रंकन होता है, घर पे आकर के जो छोटा बड़ा दिहाड़ी पे पैसा आता है उसको वो लेकर के अपना दारू इन चीजों में उड़ाता है. घर में महिलाओं के साथ मारपीट, वायलेंस होती है. ऐसी स्थितियों में भी नरेगा ने एक अपॉर्चुनिटी दी हमारी महिलाओं को.
और वो दी कि उनके पास सेविंग्स होने लगी। I'd like to share some facts. उनके बैंक अकाउंट से what एडमिनिस्ट्रेशन did, उनके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स में सेविंग की हैबिट कराई और उस सेविंग की हैबिट से महिलाओं के पास, उन गरीब महिलाओं के पास सेविंग्स होने लगी और उन सेविंग से उनके घर चलने लगे। पर्टिकुलरली बच्चे को स्कूल भेजना, भारी बीमारी में इलाज के टाइम में उसका इलाज करवाना, उस सब का उनके पास एक परमानेंट सोर्स हो गया कि वो 5 घंटे नरेगा का काम करके आए और उनके बैंक अकाउंट में पैसे हैं और वो सेविंग कर रहे हैं। एंड एक और बात, बहुत सारी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, उनकी इज्जत बढ़ गई घर में, बड़ी बूढ़ी, उनको घर की बहुएं, क्योंकि उसके पास नरेगा के पैसे रहते थे, एक तरह से उसकी पेंशन लग गई, उसकी रेस्पेक्ट बढ़ गई, घर में से बढ़ गई। इस तरह के टास्क कैसे संभव हुए, कैसे किए गए, वो ये पॉसिबल है ओनली थ्रू स्किल्स, यूज ऑफ स्किल्स, टेक्नोलॉजी, मास लेवल पर टेक्नोलॉजी, उसमें भी पर्टिकुलरली आईटी की बात। आईटी से ही मास लेवल पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा जा सकता है और उसका रिलीफ दिया जा सकता है। हमारे एक लोकल लेवल पर छोटे छोटे इनोवेशंस कैसे होते हैं, उसका एक एग्जांपल दूंगा। हमारे एक गांव था जिसके दोनों साइड से मेन रोड गुजरते थे और 15 किलोमीटर इंटीरियर में होने की वजह से अच्छा कोई साधन वहां नहीं जाता। गांव के बच्चे पढ़ने में, स्कूल जाने में, जो स्कूल जाते थे उनको बहुत दिक्कत थी, जो लोग अपनी मंडी बाजार काम के लिए जाते थे उसके भी बहुत डिफिकल्टी आती थी। हमारे कोऑपरेटिव के जो एक लोकल सेक्रेटरी था, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर आप बोल सकते हैं, उसने वहां के कुछ अच्छे लोगों से बात कि सर हमारे इस गांव के दोनों तरफ, एक तरफ 15 एक तरफ 16 किलोमीटर रास्ता नहीं है, अगर आप थोड़ी सी मुझे मदद दें तो मैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप कर सकता हूं। गांव वालों ने बात करके, वहां कोई एक एनआरआई था उस गांव का पुराना, उससे बात की, उसने 50-60 हजार रुपए का मदद दे दी और एक टेम्पो डाल दिया। एक टेम्पो उस एनआरआई के पैसे से, एक टेम्पो का गांव वालों ने, अब 2 टेम्पो इधर से उधर चलने लगे। यकीन मानिए जिसके लिए 50 रुपए तक गांव वालों के खर्च हो जाते थे, उस 2 रुपए या नॉमिनल कास्ट में शुरू हो गया। एंड दिस लेड टू अ सक्सेस स्टोरी इन दैट विलेज। उस विलेज में आज जो एक बिल्कुल रिमोट का गांव था, गांव में इसी सेक्टर के द्वारा, गांव वालों के द्वारा एक मॉडर्नाइज जिम है। एक मॉडर्नाइज जिम जो बिल्कुल हमारे यूथ्स के लिए आज के टाइम का एक लेटेस्ट एग्जांपल है। काम वो बहुत सारे कर रहे हैं, बट केवल आपको एक आइडिया देने के लिए कि ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जहां चैलेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट में काम करना बहुत मुश्किल है, इंटरफेरेंस बहुत है, पॉलिटिकल प्रेशर्स बहुत होते हैं, पर उन प्रेशर्स, उन दिक्कतों, उन परेशानियों में ही कुछ इनोवेशंस निकल के आते हैं। चैलेंजेस जो है वो हमेशा कुछ अच्छे मार्ग को लीड करते हैं। उन चीजों से एक कुछ नया रास्ता उभर के आता है। ये एक ह्यूमैनिटी के प्रारंभ से आप देख लीजिए, इंसान ने जितनी खोजें की हैं शायद इसी तरीके से की है। आज वो गांव पूरी तरह से रूरल इकोनॉमी के बेस से, पर्पस से सेल्फ डिपेंडेंट है और जो एक आइडियल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पेश करता है। तेलंगाना में एक मुल्कानूर करके गांव है, हैदराबाद से कोई 125 किलोमीटर, तेलंगाना जो नया स्टेट बना। मुल्कानूर वो ऐसा गांव के लोगों ने इस सेक्टर के माध्यम से ऐसा मॉडल डेवलप किया
कि सबसे पहले उस पूरे इलाके में सबसे पहले वहां बिजली आई, डेवलपमेंट हुआ। आज न केवल जो बेसिक किसानों की नीड है वो फिलफिल इस सेक्टर के द्वारा हो रही है, उस इनिशिएटिव के द्वारा हो रही है, बल्कि टोटल हेल्थ प्रोग्राम, टोटल वेटनरी, एग्रीकल्चर, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, वो सारे काम इसी सेक्टर के द्वारा किए जा रहे हैं। मैं सिंपली इस मंच के माध्यम से आप सबको एक वो उसकी बात कर रहा हूं जो शायद सुबह से जो अपनी मेन स्ट्रीम की बात चल रही है उसमें एकदम एलियन युग की बात लगी। बट अपना मुल्क, अपना देश गांव का देश है, और आप सब जो पर्टिकुलरली महिलाएं, एक महिला अगर जागरूक होती है, मैं समझता हूं कि एक बड़े ग्रुप की बजाय अगर एक लड़की अब आने वाली हमारी जिम्मेदार महिला को आप जागरूक बना दे, जैसे डॉक्टर आनंद सिंह कह रहे थे कि मुझे सिर्फ एक व्यक्ति की तलाश है, तो वो पूरे 2 कुलों को उस अनुरूप ढालती है, उस अनुरूप अवेयर बनाती है। अगर ये मैसेज इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस का आप तक किसी न किसी रूप में जा पाया हो, आप एक YouTube पर केवल मेरा नाम सर्च करें, ये स्पेलिंग, 2-3 वीडियोस पड़े हैं, उनको यहाँ वो सिर्फ आप सारे टेक्नोक्रेट्स हैं, आप वो देख सकते हैं। उससे आपको इस सेक्टर, इसके रोल के बारे में इंटरनेशनली, ग्लोबली, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में, आज जापान का डेलीगेशन आपके बीच में आया, जापान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी का 80% कंट्रीब्यूशन इज कमिंग थ्रू दिस सेक्टर। वो सब आपको टेक्नोलॉजिकल लेवल पर अवेलेबल है। अपनी बात को यही विराम दूंगा क्योंकि ऑलरेडी 9 सेकंड हो चुका है।